See, to be honest, entrepreneurship stands right next to stupidity, right? Like it's if you ask any entrepreneur, I'm guaranteeing they will say कि अगर हमारे को इतना vividly पता होता ना कि इसमें कितने पंगे होते हैं, तो शायद हम शुरू नहीं करते. Ignorance is really bliss in this case, right? You dive in and then you figure it out. अगर मैंने आपका मजाक उड़ाया, आप सीनियर हो और आपने मुझे बाद में नौकरी से निकाल दिया, तो हाउ वुड इट रिफ्लेक्ट ऑन यू कि यू कांट टेक अ जोक ऑन योरसेल्फ? तो वो तो साथ साथ में बहुत ठाक लेके हंसते थे कि वाह 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 क्या हुआ, क्योंकि कूल दिखना है ना. तो सही बात है. हाय शशांक, वेलकम टू मैशेबल मॉर्निंग्स. क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. हाल बढ़िया है, मौसम बहुत बढ़िया है. मौसम तो कुत्ता बारिश हो रही है. ऑरेंज अलर्ट पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं. ऑरेंज अलर्ट इज आवर सेफ्टी सिग्नल कि आज तो नहीं होगी बहुत तेज. आज नहीं होगी. हाँ, अगर उन्होंने बोल दिया हाँ, उस अथॉरिटी ने, करेक्ट, तो शायद ना ही हो. करेक्ट. But what a beautiful area you live in, yaar. Yeah, we pay through our nose on rent. Oh, this is a rented apartment? To stay in this super beautiful area, because if you're in Bombay, at least if I'm in Bombay, I'm going to be in Bandra. Yeah. In the radius of what village would this be called? This is not a village. This is reclamation. This is reclamation. Yeah, but you can walk to Pali village in like 2 kilometers ka walk hai, and we don't even take the car when we are going inside Bandra. Like that'll just take half an hour. And you have neighbors like Neha Dhupia and all of those, right? Oh, is it? Neha Dhupia lives there? I didn't know that. I'm here for the cafes. Yeah. We've picked up some good coffee, but this is more about the whole truth and you and your life. Yeah. So tell me this. आपका morning routine क्या है? मेरा morning routine काफी set है. I wake up at like 6:15 types. 6:15 बोला आपने, मतलब इतना legitimately वो precise है क्या? हाँ, वो basically 6:10 और 6:20 के 2 अलार्म लगते हैं. Oh, fair enough. और एक दो स्नूज में तो 6:15 6:25 के बीच में उठ जाता हूँ. Because it's so specific, because my wife wakes up at 7:30 and I want that first 1 hour to myself. Okay. तो वो मैं उठते ही my first like limbic reaction है, आंख बंद करके मैं किचन में जाके कॉफी बनाता हूँ. Fair enough. Right? And उसके बिना like उठा नहीं जाता मेरे से. सही है यार. And then I just read a little, have my coffee. On some days I'm not very regular with it, but take the dog out for a walk. Nice. And yeah, by then like 7:30, wife wakes up, half an hour we spend together. Then 8 o'clock I head to the gym. Oh wow. Baggage, मतलब कपड़े वपड़े लेके जाता हूँ जिम. 9 बजे तक जिम, 9:30 तक चेंज वेंज तैयार. And then also 9:30 to 12:30 I don't go to office. I sit at some cafe in Bandra. Okay. Do my work, like I do a lot of writing for the brand, a lot of content work for the brand, which जो एकांत में ही होता है, वो ऑफिस में नहीं हो सकता. तो आप इस टाइम पे ईमेल व्हाट्सएप सब बंद रखते हो? कोशिश करता हूँ. कर तो नहीं पाता हूँ फुली. हाँ जी. It's a work in progress, क्योंकि मतलब fires are burning every day all the time. Plus compulsion भी है, like this is an addiction, right? So कोशिश करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ. Do that for 2-3 hours. 12:30 I leave for office. Office मरोल में 45 minutes to office. पहुँचे, जनता के साथ लंच किया. देन सेकंड हाफ इज फॉर द टीम कि तुम ब्लॉक कर लो जिसको जो बात करनी है. सेकंड हाफ इज फॉर यू. कितनी फायर फाइट के स्लॉट्स रखते हो, सिंस यू मेंशनड फायर्स? फायर्स यार, सेकंड हाफ ऑफ द डे ऑल डेज इज फुल फायर इज फॉर द टीम. अब उन्होंने जिस चीज के लिए ब्लॉक करना है, उनको फायर फाइटिंग के लिए करना है. एंड एज वी आर ग्रोइंग, टू बी ऑनेस्ट, फायर फाइटिंग एट माय लेवल इज गोइंग डाउन ड्रामेटिकली. आई हैव अ ग्रेट टीम, सो उनके लेवल पे ज्यादा आती है. ओटा छोड़, वेरी कूल है. कोई बहुत बड़ी वाली आ गए जो नहीं बुझ रही है. See, usually, what is my job? My job is 2 things. It's either obstacle removal or resource allocation, right? Yeah. So these are the most of the meetings, and then there are some fires. Were you ever imagining yourself to start up? Did you have the risk capability wala zone in life always? Absolutely the opposite, yeah. I was a fat kid, school topper, coming from a middle class service family. My dad has spent like 40 years in ONGC. उन्होंने स्टेनोग्राफर ज्वाइन किया था और HR मैनेजर रिटायर करे थे 40 साल के बाद. और मॉम ने 30 साल 9th-10th मैथ्स पढ़ाया गवर्नमेंट स्कूल में. सो मेरा तो लाइक 2 degrees ऑफ सेपरेशन तक किसी ने बिजनेस नहीं करा. सो आई डिडंट ग्रो अप इन अ बिजनेस हाउस होल्ड बाय अ लॉन्ग शॉट. लाइक मतलब हम तो वो वाले थे कि हम बिजनेस वालों को एक अलग जाति की तरह देखते थे कि ये कि ये अलग से होते हैं कुछ.
right? So nahi, I never had, but I was always a very extracurricular sort of kid. So because I was a fat kid, I was not into sports. Yeah, clearly. But I'm just saying that because I'm the same person as you. yeah. in school. मतलब I'm like, and मेरा बड़ा वो शुरू से वो क्लियर था कि जो करूँगा बहुत अच्छा करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा. Very nice. तो स्पोर्ट्स में तो कर नहीं सकता था. हाँ. राइट. सो डिबेटिंग, थिएटर, ये चीज़ों में बहुत एक्टिव था. सो देयर वाज दिस एक्स्ट्रा करिकुलर स्ट्रीक फॉरएवर. And then later on, much later on, I realized कि actually the underlying thread was creation. मेरे को चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, मुझे चीज़ें चलाने में मज़ा नहीं आता. As a kid, and I've always had this like showmanship sort of streak Okay. in life. Again, I realized it later on, and I don't think it's a bad thing, right? Like, I think being a good storyteller by default means that you're a showman. So मेरे को तो बड़ा मजा आता था कि तुम सवाल पूछोगे, अब मैं जवाब दूंगा, तुम कुछ नहीं बोल सकते, तो आई एम तो गोइंग फॉर क्लैप्स, राइट? लाइक आप उसमें तुम्हारे को जैसा भी लगे दोहा लाऊंगा. करेक्ट. उसकी वजह से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जो स्टैंड अप वाला कीड़ा है वो पूरा बाहर निकल के नहीं ला पाए हो आप. आपको लाना चाहिए, मैं सोचता हूँ. लाइक इन अ सेफ स्पेस तो वो बहुत फुल फ्लेजेडली आ चुका है. सो अगर आप लाइक आई स्पेंड लाइक 9 years एट यूनिलीवर एट HUL, आप वहाँ पे किसी से पूछोगे आई एम द कोर्ट जेस्टर, आई एम द हाँ. तो बेसिकली कोई यूनिलीवर की ऐसी आउटबाउंड ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होता था जिसमें आई एम नॉट ऑन स्टेज. और हम अपनी ही ले रहे होते थे, हम दुनिया की बात नहीं करते. लाइक माय कॉमन यूजुअल ट्रोप वाज कंपनी के जो सीनियर मोस्ट लोग हैं गोइंग अप टू CEO, उनकी लो. And at a company जो हाँ, and they're sitting in the audience. That's what's great about that company, right? They can take jokes on themselves. Really? Yeah. अरे you, I'll send you some. Many times, many people have told me कि भाई, we thought you crossed the line and then you crossed the line and you're still here. Correct. हाँ, but उसमें मेरा एक और मेरे को बाद में इंसाइट ये भी चमका किसी, अगर मैंने आपका मजाक उड़ाया, आप सीनियर हो और आपने मुझे बाद में नौकरी से निकाल दिया, तो हाउ वुड इट रिफ्लेक्ट ऑन यू कि यू कांट टेक अ जोक ऑन योरसेल्फ. तो वो तो साथ साथ में बहुत ठहाक लेके हंसते थे कि वाह 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 क्या हुआ, क्योंकि कूल दिखना है ना. नहीं, सही बात है. बट कंटेंट हमेशा होता था HUL में. Don't know the history of it. I think 5-6 साल से तो हो रहा था. हाँ जी. हाँ, I think when this entire media landscape exploded, कि see HUL is a 100-year-old company, out of which 90 years it spent on TV. Yeah. Right? But when the media landscape 10 years ago exploded, कि अभी समझ ही नहीं आ रहा कि हर रोज न्यू screens, new formats, new media formats are coming up, etc. I think that's when it started to help brand managers keep abreast of what's happening in the content space. Yeah. आप कौन से पद पे और क्या क्या करते थे HUL में? यार 3 चीजें करी है. मैं 2009 में MBA के बाद ज्वाइन किया था, तो पहले 3 साल तो सेल्स कराते हैं. दिस इज योर कैंपस प्लेसमेंट? कैंपस प्लेसमेंट, या फ्रॉम IIM. या आई एम लखनऊ. तो वहाँ से आया, 3 साल सेल्स करी. मॉडर्न ट्रेड सेल्स करी थी मैं. फूड बाजार जो सबसे बड़ा अकाउंट होता था उसका, उस टाइम पे उसका अकाउंट मैनेजर था मैं. फिर मैं एक्चुअली 2012 में नौकरी छोड़ के तभी चला गया था. पहले आप रेबेल आए थे? हाँ, करेक्ट. फासोस उस टाइम पे बोलते थे, अब रेबेल. So did that for 2 years. I went to Fasos because मेरे को पता लग गया था कि मुझे entrepreneurship का कीड़ा है, लेकिन आता कुछ नहीं है. तो this entrepreneur in residence sounds like a great, middle ground की किसी और का पैसा आइडिया, some cushion, but है फिर भी like 0 to 1 journey है, सब कुछ करना है. Plus the fact that at that time Fasos was building a physical restaurant chain. It was not this dark cloud kitchen, etc. नहीं था. Running a restaurant is tough. It is extremely tough, right? Like razor thin margins, and it's like 2 प्रॉब्लम है. देखो, एक तो ये है कि it's day in and day out. आप कभी ये नहीं बोल सकते कि अभी सेट हो गया, right? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एट्रिशन इतनी हाई है, लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, स्टाफ आता नहीं है, ये वो. इट्स अ वेरी ऑपरेशंस हेवी बिजनेस, राइट? प्लस आप 16 घंटे काम कर रहे हो. जब लोगों की छुट्टी है, लोगों का 15 अगस्त से 26 जनवरी आप काम कर रहे हो, लोगों को रात को 11 बजे आइसक्रीम खाना जाना है, आप आइसक्रीम दे रहे हो, राइट? सो इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब. सर्विस इंडस्ट्री है ना, तो कस्टमर इज किंग. करेक्ट. व्हेन आई जॉइंड, आई थॉट कि व्हाटएवर आई पुट माय माइंड टू, आई विल क्रैक. वाज द बिलीफ आई वेंट इन विद, राइट? एंड see, to be honest, entrepreneurship stands right next to stupidity. Right? Like it's if you
ask any entrepreneur, I'm guaranteeing they will say कि अगर हमारे को इतना vividly पता होता ना कि इसमें कितने पंगे होते हैं तो शायद हम शुरू नहीं करते. हाँ. Ignorance is really bliss Yeah. in this case, right? You dive in and then you figure it out. Yeah. I realized कि ये जो operations heavy part of business है कि मैं 16 घंटे फ्लोर पे खड़ा हूँ is not serving my strengths well. It's actually preying on my weaknesses, right? So my strength is मैं शांति से सुबह 3 घंटा बैठ के सोच के 2 बड़े डिसीजन लेके फिर उनको एग्जीक्यूट करूँ. मैं 16 घंटे मेरे को ऑपरेशंस में डाल दोगे कि मैं खड़ा रहूँ ना तो मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरे को इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है. आई एज इट इज हेट waking up every day in a loop where I'm unhappy and I'm unable to do anything about it. I know what you mean. So I think it was massive learning, but every massive learning comes after मुंह की खाने के बाद. एक बड़ी लाइन की लर्निंग अगर आप नीचे बॉटम लाइन की तरह निकालो तो लर्निंग की बॉटम लाइन, I will create something of such beauty या that people will just line up to परचेज, get it, या fair enough. right? Because that's where my strength lies. अंडरस्टूड. Yeah. तो बीच में इंटर्नशिप भी की है आपने कहीं पे एक जगह? That was also a funny story. So I was always, as I told you, an extracurricular वाला बच्चा. हाँ तो मेरा सीवी तो इतना एक्स्ट्रा से भरा हुआ था कि सारे सीनियर्स ने बोला कि, और मेरे को करनी भी मार्केटिंग थी, मेरे को एमबीए में घुसते ही समझ गया था कि मेरे को फाइनेंस नहीं करना, ये पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं मुझे नहीं समझ में नहीं आता. आता. हाँ. ट्रक जाता है, माल जाता है और पैसा आता है, यही मुझे को समझ में आता है. A to B to C. हाँ, मतलब ये वो कंज्यूमर B2B भी नहीं समझ में आता. भाई आप आदमी हो, आपको बेच रहा हूँ, आपको ये दिया, बाहर दिया, आपने पैसे दिए, दैट्स ऑल आई अंडरस्टैंड, राइट? सो तो मेरे को बहुत पहले चमक गया था कि मेरे को फाइनेंस तो नहीं करना. और सबने बोला कि हाँ तेरा सीवी ऐसा है कि तेरे को फाइनेंस वालों की शॉर्टलिस्ट ही नहीं आएगी, ना तो तू टॉपर है क्लास का, ना तेरा कोई पुराना फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो नहीं आएगी. लो एंड बिहोल्ड, सच इज द रैंडमनेस ऑफ लाइफ, सारी फाइनेंस शॉर्टलिस्ट आ गई, कोई मार्केटिंग शॉर्टलिस्ट ही नहीं आई. शिट. और अब इंटरव्यू में तो हम ठीक ठाक बोल ही लेते हैं, हमने हाँ. HSBC क्रैक कर लिया पहले वाह, 10 साले वाह, जाके चले गए HSBC. मतलब देयर आर स्टोरीज एंड लाइक माय वाइफ इज फ्रॉम FMS, उसके कुछ दोस्त भी मेरे साथ HSBC में थे उस टाइम पे. दैट टाइम शी वाजंट द वाइफ, शी वाज द गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम. दे हैव टोल्ड हर स्टोरीज ऑफ ये लड़का पहले महीने में ही इतना डिसिल्यूजन हो गया कि ये तो मैं जिंदगी में नहीं करूँगा, कि मैं मतलब साइलेंट फॉर्म्स ऑफ रिबेलियन, कि मैं वो फाइनेंस वाले ऑफिस में जहाँ लोग सूट बूट पहन के आते हैं, मैं चप्पल पहन के चला जाता था. मैं पूरी रात अपना जो करना होता था, कुछ रीडिंग ये वो करता था, और सुबह आके HSBC के ऑफिस में टॉयलेट में जाके वो पॉट डाउन करके उसके ऊपर बैठ के सोता था आधा घंटा. तो ये बताओ फिर, आप जब फूड की कैटेगरी को जो पकड़ते हो, तो मेरे पापा का एक बहुत सही सीख है, वो बोलते हैं यार एक भी बार कुछ एक भी प्रोडक्ट में खराब हो गया, कुछ खराब हो गया ना, करेक्ट, that is what you're riding on. करेक्ट. Does that scare you? डर लगता है बहुत, पहले बहुत ज़्यादा लगता था, अब अगेन थोड़ा स्केल आ गया है, थोड़ा प्रोसेस आ गया है तो थोड़ा कम लगता है. शुरू में बहुत ज़्यादा लगता था, बट ज़रूरी था, क्योंकि व्हाट वी रियलाइज्ड वाज, सी व्हाई डू वी एग्जिस्ट. वी एग्जिस्ट क्योंकि हमें लगता है कि फूड ब्रांड्स आपसे 50 साल से झूठ बोल रहे हैं. झूठ नहीं बोल रहे तो आधा सच बोल रहे हैं, हाफ ट्रूथ्स बोल रहे हैं, राइट? और हम आपको पूरा सच बताएंगे कि आपके खाने में एग्जैक्टली क्या जा रहा है, राइट? उस अब जब वैसे खाना बनाया हमने, because what is the leap of faith, we are saying कि you can actually make packaged food which is as fresh and as clean as fresh food that you have, right? And once we sat down to make it, of course all the challenges of अच्छा इसमें shelf life कैसे आएगी, preservation कैसे आएगी, binding कैसे आएगी, हर चीज़ का फूड इंडस्ट्री में आंसर इज सम केमिकल. ये एक बूंद डाल दो ये हो जाएगा, एक बूंद डाल दो ये हो जाएगा. हमने हर चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि हमने तो बोला कि हम फ्रंट ऑफ पैक पे सब कुछ बताएंगे कि आपको क्या डालना है, तो हम कोई ऐसी शर्मनाक चीज़ तो डाल ही नहीं सकते जो सामने नहीं लिख सकते. ये रेसिपी लेके हम गए थर्ड पार्टी वगैरह के पास, तो उन्होंने बोला कि देखो जी ये तो हमारी मशीनों में फिट नहीं होएगा, क्योंकि इतना फ्रेजाइल है, टूट जाएगा, ये क्रम्बल हो जाएगा. एंड हम तो उस टाइम पे जीरो थे ना, तो दे वर लाइक कि यू आर नोबडी, वी विल नॉट लाइक चेंज एनीथिंग इन आवर सिस्टम फॉर यू. ऑर्डर वैल्यू भी होती है ना मैन्युफैक्चरर की. हाँ, एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है वगैरह. तो अगर फूड इंडस्ट्री को सॉल्व करना है तो फूड इंडस्ट्री के पास नहीं जा सकते कि चलो जी आपसे ही मिलके आपको सॉल्व करेंगे, राइट? So true disruption will come when you have to actually change the whole thing. Yeah, and hence you'll have to do it yourself.
बट ये कंपनी का नाम फिट शिट कैसे है? काफी लोग हमें बोलते हैं क्या है, खाने के पैकेट पे शिट लिख दिया आपने। It's also futile to your SEO by the way. हाँ correct, as I Because said, Google will delist you as profanity. see no one accused of us of being smart. Yeah. नहीं, मैंने भी स्टार्टअप जो चालू किया था उसका नाम मैंने शिट से ही चालू किया था। Oh is it? क्या नाम था? शिट ऑन स्क्रीन। Shit on screen. See? सब बड़े अच्छे लोग अच्छे से सोचते हैं। Stupidity is common to us. इंडिया का रॉटेन टोमेटोज बनाना था। Very तो nice. ना उल्टे रिव्यू देंगे। The 3 digits bothered me also 2 years ago. Oh is it? Yeah. 107.8 किलो। That जब वो 100 क्रॉस करता है तब एक बड़ी वाली घंटी बजती है दिमाग में कि यार ये तो ज्यादा हो गया। नहीं, मैं और मेरे प्रोड्यूसर यही बात की है कि 96 तक चल रहा है मेरे को, हाँ, ठीक है 4 किलो भी चल जाएगा। Correct. जैसे वो 100 के ऊपर गया ना। हाँ हाँ, आपने नोटिस करा वो जो पुराने वाले अब तो आते नहीं, वो एनालॉग वाले जो स्केल होते थे जी। उसमें 100 पे लाल कलर की डंडी होती थी। 120 पे हो गई थी फिर बाद में मेरे टाइम। इज इट? उन्होंने वो कार के स्पीडोमीटर से अलाइन कर लिया गया कि हाँ, मतलब 80 पे एक बीप और 120 पे बहुत That's सारी। true, possibly so. God knows. But वो 100 पे आपके टाइम पे वो था, लाल बत्ती थी। हाँ हाँ बिल्कुल थी। और पहला बार ही 100 क्रॉस किया था 19 साल की 18 पे। आई रिमेम्बर 12th बोर्ड से वापस आया था जब, जी। तो पता नहीं क्या शौक चढ़ा मेरे को, जिस दिन आखिरी एग्जाम दे के आया मैं वेइंग मशीन पे चढ़ा पता नहीं क्या, और कुछ 105 106 कुछ था, तो तब भी घंटी बजी लेकिन कुछ करा नहीं मैंने उसके बारे में। लाइक हाँ ठीक है देखी जाएगी, बिकॉज अगेन हाइंडसाइट में चमकती हैं बातें। मैं था बॉय स्कूल में, तो कोई किसी को इम्प्रेस करने वाला सीन तो था नहीं, एंड यूजुअली वेट लॉस फर्स्ट स्टार्ट्स बिकॉज यू वांट टू इम्प्रेस दी, 100% एग्री टू है ना। सो तो कॉलेज गए तब पहली बारी विमेन हैपेंड टू बी अराउंड मी। बीटेक में भी थी आपकी, क्या रेशियो पे थी? बीटेक में थी, बहुत कम थी, बट इनफाइनाइटली मोर देन स्कूल थी ना, क्योंकि स्कूल में तो डिनोमिनेटर 0 था। Zero था। So, इधर रेशियो कुछ तो है। रेशियो कुछ तो है। हाँ। और मतलब यंग इंडियन मेन आर नथिंग बट इफ नॉट ऑप्टिमिस्टिक, राइट। लाइक मतलब Yes. हमें लगता है कि सवाल। 100 लोगों की क्लास में 5 लड़कियां भाई को मिलेंगी। So yeah, like immediately fell in love, course. immediately got rejected, immediately put it down to मैं मोटा हूँ इसलिए कोई मुझे प्यार नहीं करता, हाँ। तो अब मैं फिर पतला होके दिखाऊंगा। तो कर दिया 9 महीने में 40 किलो लूज कर दिए। Fuck, just diet, Just alterations. diet and running. Yeah. So I had a benefit. My brother also, elder brother, 3 साल बड़ा है मेरे से, he also was very fat like me. And 2-3 years ago he'd gone through a similar transformation. And उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो गजब ही था। मतलब he still date, मतलब he's one of those 9% body fat, जिंदगी में कभी भी शर्ट उठा के देख लो उसके 8 पैक होंगे टाइप्स। तो he's far more। ये आपके सगे भाई हैं? हाँ हाँ सगे भाई। मैंने पूछा एक दिन जाके कि यार मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ बीच हाँ। बीच में, तो उसका जवाब था देख रोज सुबह खाना खाता है, हाँ, पॉटी जाता है, सोता है, तो ये मत बोल कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तू कर नहीं पा रहा है क्योंकि प्रायोरिटी नहीं। Yes. बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। ये कितनी ऐसी बात होनी चाहिए थी कि जो मेरे को हिला देती और फिर मैं कर देता, कुछ नहीं हाँ। हुआ। तभी जब मतलब विमेन डिडंट हैपन। मैं पूरा हाईली रिलेट करता हूँ। हाँ। मेरा भी सेम सीन था। हाँ। मेरी वाइफ को मैं इनफैक्ट लास्ट मेरी एक कहानी है जो बहुत बताती है, जिम में से थोड़ा सा ट्रेडमिल करके निकला था और वो बोला था चल मैं तेरे को ड्रॉप करता हूँ, ऐसे ऐसे तो कर रहा हूँ जैसे बता रही मैंने कितने किलो छोड़ के आया करके आया। वो एंडोर्फिन रिलीज हुए होते हैं। नो 100%। नो आई नो कि आपका कंटेंट गेम स्ट्रांग है क्योंकि आप खुद आपकी वीडियोस में दिखते रहते हो कॉन्स्टेंटली। यार आई थिंक 2 चीजों का कॉम्बिनेशन था। ए, मुझे लगा कि हम इतने मिशन ड्रिवन है कि हमारी कहानी मेरे से बेटर कोई नहीं बता सकता। एंड सी you're a content creator. Yeah. I think you would agree that when you say something with a lot of confidence, it travels beyond the screen. Like people feel it, Yeah. right? Like we don't have to be together. On the screen you can feel कि ये आदमी जो बोल रहा है दिल से बोल रहा है, जी जी। right? So that was reason number 1. And by the way, it raises the stakes a lot, right? Like people understand that also कि साला CEO खुद से आके बोल रहा है, कल को इसने कुछ भी किया, we call ourselves the whole truth, right? Like it is such a high pedestal कि मैं जरा सा नहीं कुछ चूक कर सकता, right? Like मैं कुछ भी करूँगा,
our community of brand lovers, they love us, Yeah. but they scrutinize us at a very high level because they're like, guys, you put yourself on the whole truth. There's some truth संपूर्ण नहीं है. सच. हाँ, right? So I felt कि अगर वाकई में इतना भरोसा है तो let's take the pendulum to the other extreme, right? Like let's डंके की चोट पे बोलते हैं कि हाँ सच बोल रहे हैं, हमारा घर एकदम साफ है, आके देख लो. और मैं ही बोलूंगा ताकि आपको ये भी पता लगे कि किसकी गर्दन पकड़नी है अगर झूठ बोला तो, राइट? एंड दैट combined with the fact that because I've been on stage and I've done all this, I wasn't like, it wasn't intimidating to me कि मैं कर नहीं पाऊंगा etc. I think within these two plus C, शुरू में तो resources भी नहीं होते तो it works great कि किसी को क्या ही पैसा दोगे. खुद ही कैमरा चालू करो, बात करनी शुरू करो. जी. और अगर I keep telling my team, देखो कंटेंट में दो ही चीजें होती हैं, what you are saying and how you are saying it, right? अब अगर and 80% is what according to me कि तुम्हारे बात पते ही कर रहे हो तो फिर ऐसे चेहरे वाला आदमी भी बोल रहा है तो लोग सुन लेंगे क्योंकि वो बात सुन रहे हैं. करेक्ट. ऑनेस्टली बताऊं तो अभी हमारे को 3.5 साल हुए हैं कंपनी चालू. जी. राइट. इट्स बिन अ ड्रीम, राइट? लाइक अगर मेरे को शुरू वाले दिन कोई बोलता कि ऐसा होगा तो मैं पहले तो हंसता एंड देन आई वुड हैव सेड प्लीज गिव इट. लाइक आई एम कहाँ साइन करना है कि ऐसा होगा तो we've had a dream run. Yeah. So we've actually largely in most part had the former problem of not letting success get to our head. Okay. And यार उसका आंसर इज हम ना वही मैं ऐसा हूँ इसलिए मेरी टीम सारी ऐसी है, हम सारे मिडिल क्लास सर्विस फैमिली वाले टाइप के लोग हैं तो हमारी तो फटती रहती है जब कुछ अच्छा होता है ना. लाइक आई डोंट नो इफ यू रिलेट टू दिस. मैं तो लाइक बड़े होते भी यही होता था कि एक एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए तो लगता था दूसरे में आएंगे कि नहीं. कभी ऐसा नहीं हुआ. आई डोंट रिमेम्बर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट एवर इन माई लाइफ, राइट? लाइक आई हैव व्हेनेवर गुड थिंग्स हैव हैपेंड इन लाइफ, आई हैव माय फर्स्ट रिएक्शन हैज बीन ज्यादा खुश नहीं हो सकते, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, जस्ट पुट योर नोज डाउन एंड कीप डूइंग द वर्क ताकि होता रहे. यस, राइट. I make sure that I have all the context, I have everything covered, I've prepped it out, I've done all of it. So मेरी लाइफ में वो वाला सीन टू बी ऑनेस्ट कभी आया ही नहीं. नहीं, होल्ड 1 सेकंड. गाइस, दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल. आप लोग भी ये ध्यान रखो कि छोटी प्रेजेंटेशन भी जा रहे हो ना, उस ऑडिटोरियम में जाके एक बार प्रेजेंटेशन रन करके ऑडियो चेक कर लेना जरूर, और माइक कहाँ पकड़ना ये देख लेना. लाइफ चेंज हो जाती है बॉस. योर प्रेजेंटेशन गोज अप 100 नॉट्स. सब लोगों को लगता है इट्स सो इजी टू से ना कि हाँ यार उसका तो नेचुरल टैलेंट है. कुछ नेचुरल टैलेंट नहीं होता यार. यू सी द बेस्ट परफॉर्मर्स, द बेस्ट आर्टिस्ट्स, they are the most hardworking, the most rigorous. They will spend hours. So when I was on the comedy like open mic circuit for a while, like I saw some of these guys, Tanmay and Rahul etc. at that time were on the comedy circuit. Yeah. Dude, I know, like मैं तो उनसे बहुत lower level का था. हम सब same चीज कर रहे थे कि मतलब every, even you know the size and the oofs etc. are measured, they are known, and only when you are so confident with your material is it that you can do an extempore if something presents itself, because you know at any point of time I can go back to my material. I am not going to get lost. The one good thing about me is कि मेरा locus of control is largely internal. तो जब बुरा टाइम आता है जी, तो I think one of my biggest gifts is I don't look outside. Okay. I look inside. कि my first reaction is not किसने खराब किया, क्यों खराब हो गया, who fucked up, etc. It's what can you do to fix it. And उसमें there are some principles that I live by कि I believe that see low times पे problem क्या होती है, you feel anxious because you don't know when will this turn into a high, right? And I think the anxiety comes from worrying about the problem rather than attacking the problem. Because if starting up में problem क्या है, you throw yourself out into the world and into all its variables which are infinite, right? So sometimes you do feel overwhelmed कि ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि what forces are at play. Yeah. Right? So समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब, and you know you keep, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो आप बोलो कि मैं तो तिनका हूँ, भगवान चला रहा है, या तुम बोलो कि सब कुछ मेरे हाथ में है. Right? Like बीच का कोई रास्ता. हाँ, actually answer is somewhere in the middle, but I don't think you can live life in the middle. Correct. You either decide कि
सब कुछ फेट डेस्टिनी है, लिखा हुआ है जी, मैं तो कठपुतली हूँ, भगवान चला रहा है, या मैं भी और- लिख के चेंज कर सकता हूँ, या फिर आई हैव चॉइस, या राइट? सो देयर आर मोमेंट्स वेयर यू फील दैट नथिंग इज इन योर कंट्रोल. या हमारी कुछ चीज़ों में किस्मत अच्छी चली. जी, हमने कंपनी शुरू करी नवंबर 2019 में, हाँ, मार्च 2020 में लग गया कोविड, हम्म, तो अगले 2 साल तो कोई नहीं आया. राइट? सो आप तो हंस रहे हो, आई एम इन डिसबिलीफ कि आपने बूटस्ट्रैप पे पैसा उठाया था, नहीं पैसा उठाया था तो मैंने. पैसा उठाया था तो फिर क्या बोले, क्या किए? नहीं कंपनी चल रही थी. कंपनी चल रही थी। आई एम सेइंग रेगुलेटरी बॉडीज से डर किस लिए लगता है. हाँ, मैं जब क्योंकि फासोस वो में इंटर था, करते हैं, हाँ मतलब आपको डर लगता है कि कुछ अनफेयर करेंगे. जी। यू नो ऑल ऑफ अस हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ वो ऑफिसर आ गया, फिर उसने ताला लगा दिया, फिर कुछ पैसा खिलाना पड़ गया, एक्सेट्रा. मैंने भी ना तो ये सिर्फ ये कहानियां सुनी है, मैंने फासोस के टाइम पे देखी हैं. जी भी है, But that was 10 years ago. I must say that we are far from perfection, but we've moved a lot in that sense in 10 years. Like 10 years ago, जो मैंने फासोस के टाइम पे देखा था और जो मैं आज देखता हूँ, the regulatory bodies have become far more professional तो या compared to that time. हम तो super compliant पहले दिन से थे. डर क्या लगता है कि कोई आके unfairly आपको परेशान करेगा, तो आपके पास टाइम, एनर्जी, रिसोर्स नहीं है वो लड़ने का, तो आपको कुछ करना पड़ेगा. ये करेक्ट, वो प्रॉब्लम कोविड ने सॉल्व कर दी, क्योंकि 2 साल सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे. सही तो है, ऐसा तो है नहीं क्योंकि ऑफिसर आया हाँ, परेशान करने के लिए, एक्सेट्रा. एंड देन वंस यू रीच अ सर्टेन स्केल, देन यू आल्सो हैव द वेयरविदॉल कि आपको ना ये डर, शुरू में ना सर्वाइवल डर लगता है जी, कि जी, कुछ भी छोटा मोटा मिसहैप कैन कॉज यू टू डाई. या Now that fear has gone away, right? Now we also have some, network, we also have some infrastructure around us, we also have licensing with the regulators. It's not as know-how है, and know-how है, etc. तो there have been instances, and जैसे आपने बोला बार में बाल निकल गया, या किसी कंज्यूमर ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर दी, वहाँ से नोटिस आ गया. एक people wouldn't know there is a legal metrology department की आपके जो इन्फॉर्मेशन है ऑन साइजिंग एंड Yes. वेट एक्सेट्रा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, एक्सेट्रा, और वो डिक्लेयर्ड होनी चाहिए. करेक्ट, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसका हम वेबसाइट पे ग्रामेज लिखनी भूल गए, और वो लोग एड हॉक सर्च मारते रहते हैं, तो कहीं पे आ गया कि जी आपने लॉन्च करा है और इसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, तो उनका नोटिस आ गया. और शुरू में बहुत फटती है कि किसी गवर्नमेंट वाली बॉडी का एनवलप जब आता है ना, तो बहुत अभी भी एब्सोल्युटली, वो कागज खोलते हुए बहुत डर लगता है कि हाँ, पता नहीं क्या क्या कर हो दिया है सकता है, भाई. कुछ भी हो सकता है. हाँ, इस बारी कुछ भी हो सकता है, और खाने के साथ तो कुछ भी हो सकता है. है, We've barely spent on, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह करते हैं, जी, एड भी बनाते हैं, लेकिन एड चलाने के लिए पैसा नहीं खर्चते हैं, हाँ, right? Most of the growth of the brand has come through word of mouth. It's come through people. What is a good thing about food? Everything else about food is bad in terms of margins are the lowest, या stakes are the highest, competition is the highest, taste keeps changing across the country. So food is the toughest business, and it reflects in the death rate of food business is the highest, right? The one good thing about food is when you do a good job, people talk about it. या यार हम अराउंड $1 million एनुअल रन रेट पे पहुंच गए हैं. क्या 10 बात सॉरी है, 10 million congratulations. $10 million, 10 not million. million, हाँ, एनुअल रन रेट पे पहुंच गए हैं, जिसमें से अबाउट लाइक 35-40% इज प्रोटीन बार्स, हाँ जी, and another 25% odd would be chocolates, and then muesli and nut butter. सुपर. बट do you ever feel the pricing is a little India one catering? Of course it is. It is, It's ना? not a feeling, मतलब it's the truth. Yeah. कि वो तो है ही. तो But- थोड़ा एस्पिरेशनल ब्रांड वैल्यूज भी आती हैं आपके उसमें. यार this is a good you brought this up because I love explaining this to everyone कि देखो when people say ना कि तुम्हारी pricing बड़ी premium है, the inherent assumption is कि मैंने this is a conscious decision I've taken कि मैं महंगा product बेचूंगा, and अगर if that's the truth then I should be making a lot of money and a lot of margin, but I am a cash burning company, I am Yeah. not profitable, Okay. right? By the way, my gross margins are also industry average. They are not above industry average. 25-30%. नहीं, packaged food is around 40-45. ओ 40-45. Yeah. मतलब depends on, अगर आप बहुत मासी बना रहे हो तो 35 types, या and थोड़ा अगर आप इन कैटेगरीज में हो तो 45-50 टाइप्स होता है.
वेयर पर्सनल केयर इज एट 70 फॉर एग्जाम्पल. मैं चीनी की जगह डेट्स यूज करता हूँ. डेट्स आते हैं 500 रुपए किलो. हाँ Right? प्रोटीन पाउडर. हाँ प्रोटीन आता है. हाँ 2000 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो. राइट. सो जब मैं अच्छे इंग्रेडिएंट यूज करूंगा तो प्राइस ऊपर जाएगा. एंड इट्स सैड बिकॉज ईटिंग क्लीन हैज बिकम एक्सपेंसिव. राइट. सो दिस इज अ वेरी सैड थिंग दैट हमारे देश में द रिच पीपल कैन ईट क्लीन एंड एक्चुअली द फार्मर ईट्स क्लीन. बट ये जो मिडिल क्लास है बेचारा उसकी लगी हुई है. हाँ क्योंकि ना तो वो फार्म में बैठा है कि वो फ्रेश खा ले, और ना वो अफोर्ड कर सकता है पूरी सप्लाई चेन से आने के बाद जो प्राइस होते हैं इंग्रेडिएंट के, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता. और ऑर्गेनिक का तो आप लोगों को पता नहीं सच है कि नहीं. कभी देखना हाँ, कोई भी ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा रहा है. हाँ, कोई मतलब नहीं है उसका. सो या वी I want to give the product at the lowest price possible, which allows me to run a company which can live for 100 years. Nice. Right? And दूसरा है कि हम जब कोई नई चीज लॉन्च करते हैं, जैसे कल हमने वो बादाम चॉकलेट लॉन्च करी जिसका वो बच्चों वाला ऐड देखा. जी. अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो शिपिंग चार्जेस वगैरह इतने होते हैं कि वो हम वी हैव टू सेल अ पैक ऑफ 10. वी कान तो ताकि 600 650 रुपए का डब्बा बने. True. Imagine 300-400 people ordered a pack of 10 on day one just because this brand launched. I don't do it for any brand. Yeah. Right? Like people write us long letters. I'm not kidding. Like मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने ऑफिस में. People have written us and we get it like once a week. It's not some once in a year occurrence. Like people tell us stories about how मेरे डैड डायबिटिक हैं, उनको चॉकलेट बड़ी पसंद है, आपकी चॉकलेट का एक पीस खाने से उनके अल्ट्रा ह्यूमन पैच पे स्पाइक नहीं आता. एक सम गर्ल रोट टू अस सेइंग कि मेरा भाई को एक कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो शुगर से ट्रिगर होता है, तो 10 साल से उसकी चॉकलेट छुटी हुई है. और हमारा एक मोमेंट होता था कि हम हर रोज़ खाने के बाद रात को विंडो के पास बैठ के एक पीस चॉकलेट खाते थे. आपकी चॉकलेट से उसका ऑटोइम्यून ट्रिगर नहीं होता. मेरा आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल लाइक रेज हिज वॉइस और स्कोल्ड. आई यूजुअली टेक अ कोचिंग अप्रोच कि देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. मैंने एंट्री पॉइंट पे सबसे बड़ा चेक मैं ये लगाता हूँ कि तुम्हारा इंटेंट क्या है, तुम क्यों आ रहे हो. तुम्हारे वी डोंट चेक फॉर स्किल टू मच. वी बिलीव स्किल्स आर टीचेबल. इंटेंट मैटर्स. राइट. सो कभी आगे जाके मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं सीखना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि ये मिशन बहुत सही है, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मुझे क्रिएशन में मज़ा आता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक्सेट्रा. नॉट बिकॉज ये मेरे करियर पाथ में एक और 3 साल का स्टेंट है फिर मैं कहीं और चले जाऊँगा. सो वी हैव वेरी लो एट्रिशन. लाइक माई टीम जो 12 लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं, वी हैव 0 एट्रिशन. 3.5 साल से वही लोग हैं. एंड ये आप लोगों के साथ पहले भी रहे हैं कुछ इनमें से कोई लोग जो ऐसे? 2 लोग मेरे साथ यूनिलीवर में थे जी. बाकी सारे हायर करे थे ओवर आने के बाद. राइट. सो व्हेन दैट कंडीशन इज ट्रू एंड स्टिल मिस्टेक हैपेंस, यू डोंट स्टार्ट अज्यूमिंग कि ये स्लैक ऑफ मार रहा होएगा, इसने सोचा नहीं होएगा, एक्सेट्रा. एंड इट पुशेज यू टू गो डीपर कि क्या चल रहा है. आई तो लव न्यू मिस्टेक्स. राइट. बिकॉज दैट इज द ओनली मार्कर ऑफ लर्निंग. I believe that one of the job of good leaders is to make people perform at a level they believed they couldn't. Yeah. Right? Like you make the definition of the best leader in the world is someone who makes you do the best work of your life. Is according to me is a great leader. And many a times that means you push people and hold them to a standard higher than they hold themselves to. So if you find me getting angry with my team, it'll happen at times when I believe they brought in work which is below what they are capable of, because they allowed themselves to be like हाँ इतना चल जाएगा. Right. And my job is to say नहीं. What new is going to be happening? What is exciting you right now? Oh, lots of stuff, yaar. Lots of stuff. Like, अब तो पहली बार, like we just did our Series B, right? So we have a lot of money in the bank. Wow, congratulations. Yeah, thank you. Despite the winter. हाँ, despite the winter. I think यार, actually VCs के पास पैसा बहुत पड़ा है. जी. It's just that now mediocre के कदम रख रहे हैं. हाँ, वो mediocre companies में नहीं जाएगा. अच्छी कंपनी उसको मिलेगा. तो अब तो it's super exciting times यार. मतलब पहली बार मिशन पे काम करने के लिए मैसिव रिसोर्स बैठा हुआ है. तो 2 एस्पेक्ट्स पे यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्शन यार. वन इज़ द प्रोडक्ट मिशन की. हमें लगता है कि जिस फूड कैटेगरी में वी बिलीव बिग फूड हैज़ बीन सेलिंग यू हाफ ट्रूथ,
हम उसमें लॉन्च करेंगे Fair enough. अपने फिलोसफी का प्रोडक्ट, राइट? बिकॉज आइडिया क्या है कि as easy as it for you to reach out and grab a junk packet of chips, it should be that easy to reach out and pick up a 100% clean packet of chips. Nice. or whichever category, Thank you. right? And second, content वाला काम जो हमारा mission oriented है वो करेंगे बहुत कि I think we need a lot more of this. And see, I've been doing this since Fitshit days. Yeah. मैं यही करता था Fitshit में कि मैं ये पास वाले नेचर्स बास्केट जाता था, हाँ अलग अलग पैकेट उठाता था, आपको फ्रंट ऑफ पैक दिखाता था, देखो सामने तो ये बोल रहे हैं लोग, हाँ पीछे मुड़ के देखते हैं कि सच है कि झूठ है, करेक्ट राइट? सी अ लॉट ऑफ एजुकेशनलिस्ट्स बिकम सुपर बोरिंग कि हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, अब तुम लोग ने देखना है देख लो, नहीं देखना नहीं, है नहीं। नहीं भाई, तुम्हारे को दिखाना भी मेरा काम है, हाँ। राइट? हाउ कैन आई डू इट इन फन वेज, हाउ कैन आई डू इट इन अ कार, हाउ कैन आई Yeah. डू इट, राइट? सो तो एक वो स्ट्रीम ऑफ वर्क है. चलो ऑल द बेस्ट. Yeah. And another one is also कि how can we bring, you know, how can I, जो चीजें लोग छुपा रहे हैं, हाँ मैं उनको सामने लाने के लिए आपको कोई टूल दे सकता हूँ, कि कोई टेक टूल दे सकता हूँ क्या, कि आप खुद से समझ लो, कोई छुपा हाँ। ही नहीं सकता, स्कैन करके समझ हाँ लो। स्कैन करके समझ लो, कुछ करके चल लो. तो ऐसे बड़े सारे थॉट्स चल रहे हैं कि अब करेंगे, अब बहुत कुछ है, रिसोर्स है. AI टू बी ऑनेस्ट इज द फर्स्ट, पिछले 3-4 सालों में 3-4 आए हैं ना. पहले बिटकॉइन आया, हाँ उसके बाद ये आया Augmented reality, आपका, हाँ AR VR आया, एक्सेट्रा, मेटावर्स आया, आके चला भी गया शायद. तो AI इज द फर्स्ट वन व्हिच एक्साइट्स मी आल्सो, बट फॉर वेरी डिफरेंट या रीजन. वन रीजन इज आई एक्चुअली थिंक कि देखो, जब आई थिंक AI इज अ रियल शिफ्ट, जी इट विल लीड टू समथिंग. एंड जब भी ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ती है ना, हाँ तो एक्चुअली हैंडक्राफ्टेड चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है. वंस AI एक्सप्लोड्स, यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि ये इंसान ने लिखा है कि ये मशीन ने लिखा है. उस टाइम पे वेरीफाइड ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू विल एक्चुअली गो अप. करेक्ट. सब्सक्रिप्शन टू हाँ, बिग कंटेंट कंटेंट की मेरे को बॉट की बातें नहीं सुननी यार, मेरे को इंसान की बातें सुननी है. हाँ, इसकी आवाज पसंद है. हाँ, AI हैज a role to play in access to information. लाइक हम लंबे लंबे आर्टिकल लिखते हैं 1500 वर्ड के, 2000 वर्ड के, उसमें 10 बातें होती हैं, लेकिन आपने एक बात जाननी है. What if I created a GPT, कि वो आप उससे वो एक सवाल पूछ लो, उस एक सवाल का जवाब दे देगा आपको. एवरी न्यू थिंग दैट कम्स विद फर्स्ट इवैल्यूएटेड विद ओपन आइज कि शायद कुछ अच्छा हो, 100%. और अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ो. कूल स्टफ. कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया. we've done conversations, I've done a lot of interviews, but we spoke about stuff that I've never Yeah. spoken about, so thank you for that. Thank you so much for having us do this with you. Do not forget to like, share and comment and subscribe to Mashable India. Also, अगर आपको वो वापस चाहिए शशांक, तो कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएंगे. We could be collaborating in the future, so keep looking yes. out for Yes. something that comes between the two of us also. I have a feeling we will. Yes.